वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, है ना? डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स इज a very inherent part of it. मतलब वी हैव बीन टॉट कि भाई अ, हर कोई पॉलिटिशियन आएगा, वो हर एक इश्यू में से अपना फायदा देखेगा. Obviously, yes. The guys who are organizing all the things, good morning, they have named it a party. है ना? What does parties do? What are parties for? To gain the power. है ना? तो लेट्स नॉट क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिक्स को गलत ना समझे. लेट्स बी कि भाई यस, पॉलिटिशियंस के इन्वॉल्वमेंट से इश्यूज विल एग्रीवेट मोर, या इट विल बी हाईलाइटेड मोर. As long as the issue is discussed in the mainstream discourse, it's fine. Now, my point is, what do you guys believe? Morning. What do you guys believe? क्या solution है इसका? How to stop? यहां से दो क्वेश्चन आ रहे हैं. एक, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इंटरेस्ट ढूंढना, इट्स फाइन. डेमोक्रेसी में डिस्कशंस, डिबेट्स, प्रोटेस्ट, एब्सोल्युटली फाइन. डिसेंट इज वेरी मच पार्ट ऑफ इट, है ना? बट what is the solution? Now, if you are, now there are many people who are saying कि भाई there is an IPS guy who has slapped a woman, है ना? So now people are saying, yeah, these policemen are not good, right? Now the point here is, what is the solution? Anybody who has thought about it कि भाई क्या चल रहा है? What is the solution? What the solution could be to the problem? Dialogue से क्या निकलेगा? Solution क्या है? What are you going to put on the table? Anybody else with a clear solution? Yes. No, that guy has been transferred. No, he's not there. He's a civil servant. Why would he do that? Bureaucracy is the only part of our government. No, you're going wrong. Nah, like, what does NTA come under? Nice. So, everything minister says or does is actually being followed under like जो भी उसके अंडर मिनिस्ट्री आती है. रेलवे मिनिस्टर सेइंग कि भाई कल से चंडीगढ़ की तरफ रेल नहीं जाएगी, कल से नहीं जाएगी, है ना? अल्टीमेटली द प्राइम मिनिस्टर सेइंग समथिंग कि भाई कल से जो है सारे पेड़ काट दिए जाएं चंडीगढ़ के, तो कल से मशीनें लग जाएंगी. यू गेटिंग माय पॉइंट? प्राइम मिनिस्टर सेइंग कि कल से चंडीगढ़ में कोई पेड़ खड़ा नहीं दिखा मुझे, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगेगी भाई, शाम को सुबह तक पूरा साफ होगा. इमेजिन यू आर ए प्राइम मिनिस्टर एंड आपकी हर बात जो है वैलिड है एंड लोग उसको मानते हैं. हर बात आप फूक फूक के बोलोगे ना, वेरी कॉन्शियसली आप बोलोगे, यार कल को मुझे जो है मुझे फला बंदा ऑफिस में नहीं दिखना चाहिए. दिखेगा वो कल से? नहीं दिखेगा. तो व्हाट इफ द एजुकेशन मिनिस्टर हैड सेड द सेम ड्यूरिंग द पेपर? इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन पेपर लीक. This start from Tamil Nadu to Kashmir. In Kashmir, I am telling you, since I'm privy to most of the issues, there was an exam, right? There was an exam in the Department of Fire and Emergency, which comes under Home Department, right? And all the people who got selected in that test had never been appeared in the test in any other exam. राइट. देन पीपल वर कमिंग. एक घर से चार चार लोगों की सिलेक्शन हुई थी, भाई बहन चचेरे भाई सबका, जिसने पैसे दिए. अब क्या करना चाहिए? नाउ इशू इज देयर विद द एंटी करप्शन ब्यूरो. व्हाट शुड हैव हैपेंड? कैंसिल द एग्जाम, गेट द कल्प्रिट्स, गेट अ फ्रेश एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. दे डिडंट डिड दैट. व्हाट दे डिड इज, उन्होंने देखा, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन किया, जिसके पेपर पे ओएमआर कॉपी पे शक हुआ,
उसको हटा दिया, बाकी लिस्ट वैसे का वैसा रख दिया. नाउ इमेजिन दैट हैपेंड बैक इन 2021 या 2020, ऐसा ही कुछ हुआ था. उसके बाद लाइक देवर 5 times at least जहां पे allegations of corruptions were there. Only in one test they cancelled the exam once, and rest all the allegations stand there. Government did not even accept कि भाई इसमें चोरी हुई है. Now recently there were lecturer exams. तो हुआ क्या? Papers were already being given to the students. जो बेचारा काफी मेहनत किया, है ना? He got like somewhere around 80, 75 to 80 out of 100 questions, which was fair. But then there were students who got 98 out of 100 correct. Well, they said this is not possible, bro. How come somebody getting like 98 out of 100 correct? 95, 96. But then what happened is when those guys were called for interview, उसका एक second stage interview था. अब जिसके 98 out of 100 है, उसके इंटरव्यू में 10 में से 10 होने चाहिए, 12 में से 10 होने चाहिए थे एटलीस्ट. No. He or she got like just 5, 6 marks. And the guys who are having 75, 80 marks, they got 10 out of, 9 out of 12. That stands exposed. But again, nobody accepted the fault. It's in one of the state, and which is a very sensitive region of our country. ठीक है, कुछ भी वहां पे अगर ऐसा इशू होगा तो पूरी कंट्री विल बी लाइक ये भाई सिक्योरिटी इशू हो गया. बट स्टिल दे उन्होंने छोड़ दिया उसको. अगेन गोइंग ऑन टू व्यापम स्कीम, आपको पता है एमपी में हुआ था, काफी फेमस. व्यापम स्कीम में जो लोग इन्वॉल्व थे, जो विटनेसेस थे, सबको मार दिया गया. राइट. सिमिलरली हर एक स्टेट में पेपर लीक इज लाइक करप्शन इन जो लाइक टेस्ट में, या पेपर लीक इज क्वाइट अ नॉर्म. यू गिव मनी, यू गेट द जॉब. So it's all about that. It's not just about एक NTA हुआ. अब now what happens is एक स्टेज पे जब कोई अकाउंटेबल हो जाता है, then other people also think, भाई we can also be the targets. Let's not do that for a while. Yeah, it's all about the system now. It's not just about a person. उसके resignation से कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं as such. But again, the government will be under pressure to work. That's the point actually. Build that pressure. And होता क्या है ना कि अमेरिकन डेमोक्रेसी हमसे अच्छी क्यों है? We are the largest democracy, right? America is the oldest democracy in the world. एक सबसे बड़ा फर्क है, आप प्रेसिडेंट को वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी बोल सकते हो, है ना? उसको क्या क्या नहीं बोला जाता है प्रेसिडेंट ट्रम्प को. और सबसे बेस्ट चीज वो है, वहां दूसरे टर्म के बाद यू कैन नॉट फाइट इलेक्शंस. तो डेस्पोटिज्म का कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि भाई, क्योंकि एक टाइम के बाद मिल्स की एक थ्योरी है, CW मिल्स, उन्होंने कहा कि आप किसी भी मूवमेंट में कितनी भी डेमोक्रेसी इनिशियली ले आओ, किसी भी सिस्टम में कितना भी डेमोक्रेटिक सेटअप ले आओ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो डेस्पोटिक हो जाता है. डेस्पोटिज्म मीन्स तानाशाही. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो ये समझने लगते हैं कि वी आर द एक्चुअल बॉसेस, हमारे मतलब वी आर हियर परमानेंटली. तो जो भी हमारे खिलाफ आवाज उठेगी वी विल कट इट डाउन. तो ये हर एक सिस्टम का प्रॉब्लम है. इसका एक ही सोल्यूशन है, 2 टर्म्स के बाद बाय वी विल नीड समबडी एल्स हु कम्स विद बेटर आइडियाज, बेटर विजन. बट इंडिया में लाइक वी आर too immature to understand certain things, how democracy works. Religion का वो बेच दिया जाता है हमको. Now government has nothing to do with the religion as such. It must not have, है ना? ले आओ भाई उसका सेक्युलरिज्म, वेस्ट का, फ्रांस का, खत्म कर दो कहानी. Once for all solution will be there. तो रिलीजन के नाम पे जब समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, तो जो दोनों हिस्से हैं, they will try to share their sentiments with each other. There will be more division between the two, but more cohesion in intra communities.
तो वो जो कोहिजन है वो एक ना एक को बेनिफिट दे ही देता है ना। तो ये प्रॉब्लम है, लाइक व्हेन देयर आर डिविजन्स वी डोंट अंडरस्टैंड। उससे क्या होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो एक्चुअल इश्यूज है दे आर जस्ट दे आर अंडर द कार्पेट, कोई नहीं उनको देखता। नाउ एज ए स्टूडेंट्स, as somebody who is more awakened than others, the guys who are at the CJP, they're at that protest site, many of them would have been never in such kind of classes ना, उन्होंने ऐसा डिबेट कभी जिंदगी में नहीं किया होगा, but they still understand the gravity of the issue. It's not just about one exam, it's about the system. तो whenever you are, आपसे पूछा जाएगा कि what is your opinion, like again it's never about one single person. You'll always have to be कि भाई it has to be a cleaner system जहां पे everybody has a chance, equal chance. Already there are a lot of other issues in the society, है ना, बहुत सारे issues है। कोई किसी चीज पे ओपिनियन रखता है, कोई किसी चीज पे ओपिनियन रखता है। नाउ आई डोंट वांट टू बी दैट ओपन हियर। नाउ एक्चुअल इश्यूज हैव टू बी डिस्कस्ड। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, यू स्टे अवेकन्ड, यू नेवर कम अंडर एनीबडीज प्रेशर और एनीबडीज आप पे कोई ओपिनियन आपको परसुएड करने की कोशिश करे। यू कैरी योर थॉट्स, योर ओपिनियंस। ऑलराइट, सो अगेन लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाँ जी, एब्सोल्युटली यस। सी, जब भीड़ आती है ना, नाउ देयर आर डिफरेंट बिहेवियर्स ऑफ ए क्राउड। एक होता है कि हमारे यहाँ कहावत है कि जहाँ पे क्राउड जमा हो वहाँ अंधेरा होता है, जहाँ पे क्राउड हो वहाँ अंधेरा होता है। नोबडी इज कॉन्शियस, सब लोग कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ, कोई किसी को मार रहा है चलो मैं भी एक हाथ चला ही लेता हूँ। दैट हैपन्स, है ना। नाउ द एक्चुअल थिंग इज कि देयर आर एक्चुअल इश्यूज, देयर आर इश्यूज जिन पे कभी बहस ही नहीं हुई, है ना। नाउ टेम्पल डोनेशंस में क्या हुआ, इट इज गॉट नथिंग टू डू विद अस। वी कैन फील बैड और वट एवर, बट अगेन इट डज नॉट इम्पैक्ट द लार्जर सोसाइटी, है ना। डोनेशंस का मामला है, एवरीबडी विल हैव एन ओपिनियन, भाई गलत हुआ, कोई नहीं बोलेगा कि अच्छा हुआ। बट व्हाट एक्चुअली मैटर्स टू ईच एंड एवरीबडी ऑफ अस, मैंने कल बताया था ना जस्टिस, परसों के लेक्चर में आई टॉक्ड अबाउट जस्टिस। इफ आई टेल यू टू गो आउट ऑफ माई क्लास, तो हमारे यहाँ जस्टिस क्या है, अनलेस इट इम्पैक्ट्स मी आई डोंट केयर। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सोसाइटी का कि मेरे को कुछ नहीं, क्या फर्क पड़ता है भाई, आई डोंट केयर। बट अगेन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ इट विल स्ट्राइक मी एज वेल, किसी को नहीं छोड़ सकता। कोविड एक टाइम पे था, when there was one case in India, I was in Delhi. I was going from Karol Bagh to Saket to meet a person. Now I know कि कहीं इस नोएडा के आसपास there has been one case, ठीक है। I was like कि भाई एक केस है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लिटरली आई थॉट। और मैं मेट्रो से जा रहा हूं तो मैं रेल्स पे हाथ नहीं लगा रहा हूं नोइंग कि भाई किसी ने हाथ लगाया होगा। आई वाज सिटिंग लाइक दिस एंड आई रिमेंबर द थॉट, इट्स जस्ट वन केस। चाइना में तब क्या हो रहा था, वी हैड एन अंडरस्टैंडिंग। अब रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, कुछ ना कुछ इंटरनेट, तो आई वाज जस्ट लाइक इट्स जस्ट वन केस, nothing is going to happen. We were three friends. We came back after 15 days, just 15 days, Delhi was burning, right? And I went home on 8th of March, सुबह सुबह 21 मार्च को पूरा इंडिया लॉकडाउन, ठीक है। नाउ अब घर पे मुझे लगा कि यार यहां तो नहीं आएगा, एटलीस्ट वहां पे भी आया, ठीक है। चलो वहां पहली वेव में वी वेर ओके। आई केम बैक टू दिल्ली इन द सेकेंड वेव, सेकेंड टाइम। मुझे लगा अब तो मैं चिल हूं। वी वर प्लेइंग क्रिकेट, वी वर अपियरिंग इन द एग्जाम्स एंड ऑल। उस दिन एक दिन मुझे शाम को मैं जब घर रूम पे आया, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, आई केम बैक, आई एम टेलिंग यू स्टोरी जस्ट टू मेक श्योर कि हाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस। मैं देखा यार मुझे तो खाने में मजा ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या है। अब डर, मैं गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जैसे ही मैं अंदर गया, इट वॉज हेल। बॉडी बैग्स ऐसे ब्लैक बैग्स में ऐसे पड़े हैं, यहाँ से यहाँ से।
ओ मैं वो बस नाउ आई विल बी वन ऑफ द पर्सन्स। उन्होंने टेस्ट किया, अंधेरे में ऐसा कुछ ने टेस्ट किया, बोला यार पॉजिटिव है। उसके बाद जो मैं बीमार हो गया, तब तक आई वॉज फाइन कि कोविड भी था, चल रहा है। तो मुझे लगा यार ये तो मसला है, इट्स एन इशू। आई बुक्ड अ फ्लाइट नेक्स्ट मॉर्निंग, श्रीनगर, दिल्ली टू श्रीनगर, एक फ्लाइट में अकेला बंदा, मैं, सुबह की 6 बजे की फ्लाइट, कोई नहीं जा रहा कहीं, कोई कहीं नहीं जा रहा है। मैं घर चला गया। अब मैं क्या कोविड कैरी कर रहा हूँ, डर के मारे मुझे लगा इफ आई डाई हियर आई डोंट वांट टू डाई इन दिल्ली, कि वहां पे मैंने हालत देखी हॉस्पिटल्स में। आई वेंट टू होम। अब घर पे मैंने सबको फैला दिया। नो आई बिकेम द रीजन, नो जिसकी वजह से पूरे घर पे कोविड फैल गया। लकीली वी सर्वाइव, बट द पॉइंट इज, एक टाइम पे मैं भी सोचता था कि भाई मेरे को तो इम्पैक्ट नहीं होगा, आई वुड बी लाइक सेफ, बट अगेन आई बिकेम द रीजन, सबको फैल गया, राइट। तो पॉइंट मेरा ये है कहने का कि नेवर एवर थिंक कि मेरे को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इट विल इम्पैक्ट ईच एंड एवरीबडी सिंस वी आर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम, इट्स जस्ट अ डिफरेंस इन टाइमिंग, राइट। एनीवे, व्हाट इफ समडे यूपीएससी के पेपर में कोई बंदा आ गया जिसने कर दिया लीक मामला, है ना। व्हाट इफ, हो सकता है ना। 100-150 करोड़ लोग रहते हैं हम, निकला किसी ने जुगाड़ ढूंढ लिया, कुछ कर दिया उसने, फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स का पेपर ही लीक हुआ। लास्ट ईयर की स्टोरी है। आई वॉज सिटिंग इन माई रूम हियर इन चंडीगढ़। आई वॉज वर्किंग इन ए फाउंडेशन देयर इन दिल्ली। तो हर साल 5,000 लोग फॉर्म भरते हैं सिविल सर्विस की कोचिंग के लिए, 5,000 पीपल। मैं बैठा हूं, उनका एग्जाम कल है। अब इट हैज बीन 2 years सिंस आई हैव लेफ्ट दैट इंस्टीट्यूशन। मैं बैठा हूं, टेलीग्राम पे मुझे एक मैसेज आया, सर आई वांट टू डिस्कस विद यू समथिंग। आई सेड यार कॉल। एक लड़की थी, उसने मुझे कॉल किया, बोला सर अतिया फाउंडेशन में आप नहीं हो। मैं बोला नहीं, मैं नहीं हूँ एज ऑफ नाउ। बोला कि आपके कॉन्टैक्ट्स है वहां। मैं बोला हाँ, कॉन्टैक्ट्स तो है। बोला मेरे पास पेपर आया है, आई डोंट नो द ऑथेंटिसिटी ऑफ द पेपर, एक बार ये आप देख लो। उसने मुझे पेपर भेजा, पेपर विद आंसर की, पूरा, कल एग्जाम है, पूरा पेपर, 100 क्वेश्चंस विद आंसर की, पूरा हैंड रिटन पेपर, स्कैन कॉपी उसकी अच्छे से। और मैं बोले तो गलत बात है। आई कॉल द चेयरमैन ऑफ द फाउंडेशन, आई सेड कि देयर इज एन इशू। ही सेड कि पेपर तो मैं नहीं भेजूंगा, जस्ट गेट द गाय हु इज इन चार्ज। उसने बंदा लिया, उसने बोला, मैंने पहले वेरीफाई किया कि पेपर कैसे लिखा है। बोला हैंड रिटन। मैं किससे बनाया, जिस बंदे का नाम लिया, आई नो दैट गाय। मैं देयर इज ए पेपर लीक। बोला मुझे भेज दो। जैसे मैंने उसको पेपर भेजा, वो उसकी हालत खराब हो गई, वो बात नहीं कर सक रहा था, फंबल हो रहा था। आई सेड व्हाट नाउ। बोला किसने भेजा। मतलब दैट्स नॉट द पॉइंट, ये बाहर कैसे आया ये। अब फैल गया था तब तक पूरा श्रीनगर, जम्मू, जयपुर, जहां जहां पे ज्यादा बच्चे जहां से आ रहे थे। तो बट देन दे कंडक्टेड नेक्स्ट लाइक फ्रेश एग्जाम आफ्टर अ वीक। दिस इज द स्टोरी। ये तो मैं एक जिस संस्था से जो मैं चला रहा था वहां की हालत है ना। तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज हैपनिंग इन द सोसाइटी। एनीवे, लेट्स फोकस ऑन द क्लास नाउ। कैरी एन ओपिनियन एंड बैक दैट ओपिनियन। अगर आप ये समझ रहे हैं कि दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, देन यू हैव टू बैक इट। दिस इज राइट, बैक द ओपिनियन। बट ऐसा खाली दिमाग नहीं रखो, ओपिनियन कैरी करो। वट एवर इज हैपनिंग, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद इंडियन डेमोक्रेसी हैपनिंग एज ऑफ नाउ इज, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारा, इट्स कंप्लीटली ऑफ द बुक्स। देख लो आप डिस्कशन, गुस्सा आता है, भाई क्या बोल रहा है। व्हाट इफ दे वुड नॉट हैव बीन सोशल मीडिया, तो ये उधर ही मर जाता है पूरा डिस्कशन, है ना। दुर्भाग्य, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, दुर्भाग्य है हमारा कि हम ऐसा मीडिया कैरी कर रहे हैं, विच इज वेरी अनफेयर। बहुत ही बायस्ड एंड अनफेयर मीडिया
इज देयर. खैर, मोरल एटीट्यूड हमने समझा था, राइट? क्या होता है मोरल एटीट्यूड? ओके, फेयर. एनीबडी एल्स? किसी को नहीं पता? ऑब्वियसली आई, या प्लीज. जैसे मैंने एक एग्जांपल बताई थी कि किसी को तीखा खाना पसंद नहीं है, या कोई दाल नहीं खाता, कोई कोई सब्जी नहीं खाता. इट हैज नथिंग टू डू विद द मोरालिटी. इसमें सही और गलत वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, राइट? इट्स जस्ट अबाउट कोई चीज पसंद नहीं है, आपका एटीट्यूड वही है. अब मोरल एटीट्यूड वो चीज होता है जहां पे हम एक्शन के बेसिस को सही और गलत के हिसाब से तोलते हैं, राइट? तो दैट मेक्स इट डिफरेंट. तो मोरल जहां पे हम सच्चाई, ट्रूथफुलनेस फॉर एग्जांपल इज अ वैल्यू. तो हमेशा जो ट्रूथफुलनेस के वैल्यू को यकीन रखता है, मेकिंग इट अ राइट वैल्यू, ये चीज करना सही है, मेरे एक्शंस उसी हिसाब से होंगे. आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ इन द सिचुएशन. तो दैट मेक्स इट अ मोरल एटीट्यूड, राइट? नाउ इसके कुछ क्वालिटीज होती है मोरल एटीट्यूड के, उस पर हम बात करेंगे. वेरासिटी, दैट इज द कॉन्स्टेंसी. इट स्टेज देयर. क्योंकि सही, जब आप सही चीज पे बिलीव करते हो, वो एटीट्यूड आपके अंदर है, तो इट्स परमानेंट. इट्स नॉट टेम्परेरी एक आधी चीज में, ऐसा नहीं है. नॉर्मली एटीट्यूड क्या होता है, ये सिचुएशनल होता है. यू गेटिंग माय पॉइंट? जरूरी नहीं है कि हर चीज में या हर किसी भी बंदे को इवेल्युएट करने में, किसी भी एक्शन को इवेल्युएट करने में एक ही थॉट हो. थॉट्स कैन चेंज. मुझे सांप से डर लगता है, तो मैं सांप जैसे ही देखूंगा मैं भागूंगा. व्हाट इफ वो किसी के हाथ में, किसी ने उसको पकड़ के रखा है, तब मुझे डर नहीं लगेगा, तब मैं जाऊंगा नजदीक. यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज नॉर्मल एटीट्यूड. बात समझ में आ रही है आपको? दैट इज नॉर्मल एटीट्यूड. सिचुएशनल होता है. जब हम मोरल एटीट्यूड की बात करते हैं, भाई सच्चाई सच्चाई है, ट्रूथफुलनेस इज ट्रूथफुलनेस, है ना? तो ये चेंज नहीं होगी, सिचुएशनल नहीं हो सकती. तो मोरल एटीट्यूड इज ऑलवेज परमानेंट. क्योंकि आपके एटीट्यूड पे को वैल्यू लोडेड होता है, उस पर एक वैल्यू बैक करता है. वैल्यूज ऑल्सो आर परमानेंट. तो वेरासिटी है उस चीज की, ट्रूथफुलनेस, फिडिलिटी, कॉन्स्टेंसी एंड अवेयरनेस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी को वेरासिटी हम कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज रेवरेंस. यू होल हार्टेडली रिस्पेक्ट इट. आपको ये सबसे प्यारा लगता है, ये एटीट्यूड अपना, मोरल एटीट्यूड. ठीक है. आप इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. महात्मा गांधी, हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स, क्या बोलते थे उसको, अहिंसा, नॉन वायलेंस, वॉज परमानेंट. जो भी हो, आई विल नॉट डू द वायलेंस, या आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंस एट ऑल. इंसिडेंट हुआ चौरी चौरा, लोगों ने उसको सराहा कि भाई हमने, वी जस्ट वर एबल टू इन्फ्लिक्ट द डैमेज, हम डरते नहीं है, विच वॉज फाइन. अथॉरिटी को वो चैलेंज कर रहा था. आई एम नॉट सेइंग कि वो किलिंग्स फाइन थी, बट ओवरऑल जो साइकी उसकी वजह से फैल गई, इट वॉज फाइन. बट गांधी सेड नो ब्रो, दिस इज अनजस्टिफाइड, आई वोंट बी टेकिंग इट, नॉट माई वैल्यूज. राइट? तो रेवरेंस इज देयर कि यू नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द सेम थिंग, अपने उस एटीट्यूड पे. देन देयर इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, internalized values that guides careful, courageous decision making. ठीक है. Now there are two things. There are two, यहां से एक चीज निकल के आती है, courage, and second word is brave. सुना होगा brave. Who is brave and who is courageous? किसी को फर्क पता है? ब्रेवरी क्या होती है, करेज क्या होता है? उल्टा है, काइंड ऑफ सेम, बट जो ब्रेव में ब्रेवरी हो, जो डेफिनेशन आपने बोली, दैट इज इन करेज.
courageous. You know that there is a इस जहां से कुछ जंग लड़ रहे हैं आप, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन वॉर, ठीक है, तो बड़ा ही बहादुर सिपाही था, बोलते हैं ना हम, बड़ा ही बहादुर सिपाही था, करेज के साथ लड़ा, नोइंग कि भाई देयर इज एन एनिमी, ही कैन फायर एट मी, आई मस्ट नॉट गो देयर। वो चीजों को इवेल्युएट करता है, देख रहा है कि यार यहां पे मरने का खतरा है, ठीक है, उसको डर लगता है, ही फील्स फियर, ऐसा नहीं कि डर नहीं लगता, जाता है डर के मारे, अपने बंदे की जान या उसको इवैक्यूएट करके ले आता है, गोलियां बरस रही होती है, देखा होगा ना मूवीज में, दैट इज द करेज। ब्रेवरी इज सेंसलेस एक्शन, उसमें नहीं सोचते हम, ब्रेवरी में भी देयर इज ए एलिमेंट ऑफ डेंजर, बट हम सोचते नहीं है, इवेल्युएट नहीं करते, गया ले आया बैठा, उसको पता नहीं चल रहा यहां पे मर सकते थे, पता होता है, बट उसको वो डर, वो जो थॉटफुल एक्शन है वो नहीं होता, इट्स जस्ट दैट एक्शन, दैट्स कॉल्ड एज ब्रेवरी। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी करेजियस देन ए ब्रेव, ठीक है। तो व्हाई डू वी यूज द वर्ड करेज? In context of this, we will always find word courage more than bravery here in ethics, ठीक है। तो responsibility, आपके अंदर responsibility लेने का courage होना चाहिए, गलती हो गई, yes, I take the responsibility, it needs courage to take responsibility for an act। प्रधान साहब को तो courage नहीं है ना, he does not carry that courage, उसको पता है कि यार इफ आई रिजाइन मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म। आज तक इंडिया में जिस भी पॉलिटिशियन ने, जिस भी मिनिस्टर ने रिजाइन किया है, ही वाज नेवर एबल टू मेक इनटू द सीन अगेन, आउट ऑफ करेज। वो करेज नहीं है ना बंदे के पास। देखो 2014 से पहले जितने भी रेजिग्नेशंस हुई, उनका नाम दोबारा आपने सुना नहीं होगा। You get my point? So it needs courage to show responsibility and act. तो जब आप moral attitude पे चलते हैं, you will always carry that courage. Yes, I failed, yeah, I missed, it's my responsibility, I will act now, ठीक है। Then there is faithfulness, you will always stick to your faith, आप इसके प्रति बड़े ही faithful होंगे जो आप वैल्यू या moral attitude कैरी करते हैं, right? Loyalty to a person or a cause expressed through consistent action. Then there is goodness, rooted in love, the attitude that enables kindness and generosity. These are the properties of moral attitude. यहां पे सारी अच्छी बातें, permanency is there, reverence is there, responsibility is there, faithfulness is there, goodness is there. तो अगर आपके पास moral attitude पूछा जाता है एग्जाम में, these are the keywords, जिनको हम keywords कहते हैं, ठीक है। जब आप पॉइंट लिखते हैं, ये वर्ड्स पहले आते हैं ऐसे, फिर आप इस वर्ड की एक्सप्लेनेशन देते हैं एक लाइन में, फिर आप नीचे एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल 3 लाइन की नहीं हो सकती, एग्जाम्पल एक वर्ड होता है, कोई इंसिडेंट, कोई इवेंट, कोई पर्सन, ठीक है। तो आपका पॉइंट हो गया तैयार। सेम गोज फॉर एवरीबडी, एवरी सब्जेक्ट, 1 GS1 GS2 GS3, हिस्ट्री का टॉपिक, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, गवर्नेंस का, इकोनॉमी का, यू फाइंड ए कीवर्ड, ठीक है, उस कीवर्ड को आप पहले लिखते हैं, देन एन एक्सप्लेनेशन इन 1 लाइन, देन एन एग्जाम्पल और फैक्ट और डेटा, वट एवर यू कैरी, ऐसे बनते हैं पॉइंट्स, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, तो इसके इंप्लीकेशंस क्या होते हैं? पॉजिटिव वंस, टाइड टू अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, सो इट डिटर्स डिविएंट बिहेवियर, इससे आप नहीं हटते हैं। इफ यू कैरी अ मोरल एटीट्यूड, आप हमेशा उसको उस पर डटे रहने की कोशिश करेंगे, यू विल नॉट डिविएट फ्रॉम दैट बिहेवियर, ठीक है। मोटिवेट्स ऑल्ट्रुइज्म, वॉलंटियरिज्म एंड सोशल सर्विस,
व्हाट इज ऑल्ट्रिज्म? ऑल्ट्रिज्म क्या होता है? काइंड ऑफ a soldier fighting at the border, giving his life for what? Yes, that is altruism. जब आप सेल्फ इंटरेस्ट या सेल्फ को बीच में नहीं रखते हैं, ठीक है, तो वट एवर एक्शंस यू डू इट इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, लार्जर कम्युनिटी, इट्स कॉल्ड एज ऑल्ट्रुइज्म. सेकेंड इज ईगोइज्म, इसका ऑपोजिट. Anything you do it for yourself. If a soldier is egoistic or believes in egoism, he won't die at the border. He won't give his life. भाई मेरा क्या जाता है? Why would I die? Right? So it's the altruistic behavior of a soldier that makes him to sacrifice his life for the people. Right? तो जब आप moral attitude carry करते हैं, it is not giving you something in return. It's just an altruistic behavior. ठीक है? Volunteerism, social service. As I saw recently, कल ना I was watching the videos. तो there are girls, छोटी छोटी कॉलेज की, स्कूल्स की, वो पानी बांट रही है, खाना बांट रहे हैं, सफाई कर रहे हैं वहां पे. What is that? That is altruism, sense of social service. उसको क्या मिलने वाला उससे? But again, they are giving their whatever they can. So these are the positive implications of moral attitude. इसके negative implications क्या है? Can be used to justify violent behaviors, still accepted by society because moral attitude carries strong emotion. ठीक है? Now I am going to give you very sensitive examples. All right? We believe in sense of we believe in we think unity is the basic premise on which our society stands. ठीक है? उसके लिए हमको किसी को सजा भी देनी पड़े, we won't budge. Right? कोई कुछ एंटी नेशनल बिहेवियर करता है हमारे यहां, हम उसको टॉलरेट नहीं करते हैं ना, इसको फांसी दो, किल हिम. राइट? वो उससे मेरी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है पर्सनली, बट आई बिलीव कि ये लार्जर गुड है समाज के लिए, किसी को फांसी देना. वी ऑलवेज थिंक सम फांसीज इन इंडिया या सम हैंगिंग्स वर क्वाइट राइट, सम वर नॉट. राइट? देयर आर एग्जाम्पल्स एज वेल. आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि वो सही था गलत का, नहीं, बट कलेक्टिव कॉन्शियस जिसको हम कहते हैं, पूरे समाज का जो कॉन्शियंस है वो सेटिस्फाइड हो रहा है. व्हाट डज दैट मीन? इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, अगर सुप्रीम कोर्ट को किसी को फांसी देनी होती है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज कलेक्टिव कॉन्शियंस. अगर इसकी सजा से पूरे समाज की कॉन्शियंस सेटिस्फाई हो रही है तो हैंग हिम. राइट? वो कलेक्टिव कॉन्शियंस क्या है? That is the moral attitude of all the people out there. Right? इसके लिए किसी को फांसी पे लटकाना पड़े तो लटकाओ. This is the negative behavior, negative implication of the same. Right? Yes. Wouldn't it have been कि आप ऐसा था इतना ही? आपने तो बहुत पीछे चले गए. मैं रिसेंट एग्जांपल दे देता हूं. कोई एंटी सोशल एलिमेंट है जिसने चोरी की, डकैती करता है, जिसपे 3-4 FIR है, पुलिस उसको गोली मारती है, वी नो ए फेक इनकाउंटर है, उसका घर तोड़ती है, सेटिस्फाइड. निर्भया के मामले में वेल सरकार उनको छोड़ तो नहीं रही थी, दे वर नॉट लेट फ्री, दे वर देयर, या बहुत देर, क्योंकि हमारे अंदर वो जज्बात दब नहीं रहे थे. भाई कब इनको फांसी मिलेगी, मेरा सेंस ऑफ सेल्फ सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना?
तो फिर उस जल्दबाजी के चक्कर में सरकार ने उनको फांसी दे दी. व्हाट इफ देयर हैव बीन मिस्टेक्स, व्हाटएवर, मैं बोल रहा हूं बस. ट्रूथ विल नेवर कम आउट नाउ ना. लॉट ऑफ थिंग्स विल नेवर कम आउट नाउ. व्हाट इफ देयर वुड हैव बीन अ जुडिशियल मिस्टेक समवेयर, उसको ठीक करने हमारे लिए उसमें हमारे पास टाइम ही नहीं था. व्हाट इफ किसी का घर तोड़ के समाज को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या पता वो बेकसूर निकला. यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही? व्हाट इफ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट निर्भया केस, बट ऐसे तो बहुत सारे केसेस है ना अलग अलग. द प्रेजेंट लीडर ऑफ अपोजिशन forgave his father's death, जो उसमें इन्वॉल्व थे, माफ कर दिया ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे. फ्री हो गए ना वो लोग, छूट गए ना वो. Those who killed Rajiv Gandhi, who were involved in his killing, ultimately the family, उन्होंने उनको माफ कर दिया कि भाई ठीक है, फाइन. So let's not be very hardened. This is a problem with moral attitude, कि हम जब तक उसको सेटिस्फाई हमारा कॉन्शियस नहीं होगा तब तक हम नहीं बैठते. उतावले कर देता है हमको. हाँ यार, वटेवर, मैं हमेशा सोशल इविल को हमको जो सिखाया जाता है ना कि चोरी हर समाज में होती है, मुझे एक सोसाइटी दिखाओ जहां पे चोरी नहीं होती. अब चोर को तुम घर तोड़ोगे, कहां पे होता है? किसी भी सेन सोसाइटी में, है ना. बुर्किना फासो सुना है? तो इट्स नॉट अ वेल डेवलप्ड कंट्री जहां पे समाज बड़ा ही, वो मेजरली ट्राइबल्स रहते हैं वहां पे. ऑलराइट, लेट्स नॉट डिस्कस दैट थिंग, बट द पॉइंट इज, वहां की मोरालिटी और दूसरे सोसाइटीज की मोरालिटी को आप इक्वल नहीं कर सकते ना. बट चोरी वहां पे भी होती है, हर समाज में. ऐसा नहीं है कोई ऐसा कंप्लीटली प्योर समाज है. बट आप किसी को उसका घर तोड़ रहे हैं, किसी को वेंगेंस पे जेल भेज देते हैं, कुछ लोग फ्री है, तो देयर इज, यहां पे किसी का कलेक्टिव कॉन्शियंस सेटिस्फाई हो रहा है तो फाइन, घर तोड़ो. द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस हैज चेंज ना. अब देखो आप, जहां पे देयर हैज, क्योंकि मॉरल एटीट्यूड हमारा काफी काफी स्टिफ हो गया, इट्स नॉट अलाइन टू अ राइट वे. ऐसा मेरा कहना है कि जब भी it makes us to justify the violent behavior at times, not always, but at times. We know कि भाई इसका घर तोड़ा, इसकी फैमिली ने क्या गुनाह किया. कोई फॉर एग्जांपल कोई टेररिस्ट है, बन गया, ठीक है, क्या उसके बाप ने उसको बोला था तो टेररिस्ट बन जा? कोई बोलेगा अपना बाप किसी बेटे को तो टेररिस्ट बन जा? मुझे नहीं लगता. लाइक आई बिलोंग टू अ प्लेस जहां पे 90s के टाइम पे, आई विल टेल यू, अंधेरा था. एक बारी ना हम नमाज को गए, जा रहे थे शाम को, ईशा की नमाज कहते हैं उसको, इट्स समवेयर अराउंड 8 और 9 के आसपास होती है. तो अंधेरा था, छोटा था मैं, आई वुड हैव बीन लाइक 8 और 9 इयर्स. जैसे ही हम मस्जिद से बाहर आए, आई सॉ लाइक ऑलमोस्ट 20 पीपल वॉकिंग विद ऑल द बुलेट्स, यहां से यहां से. मेरी तो हालत खराब, ठीक है. उन्होंने हम सबको नमाजियों को ऐसा रखा, हमसे नाम पूछ रहे. मैं बच्चा था, मेरे को तो नहीं कुछ पूछा. जो बड़े लोग थे, कहां से हो, तुम कौन हो? दे वर ऑल टेररिस्ट. आई एम सेइंग इट ऑन कैमरा विद ऑल ऑथेंटिसिटी. मुझे लगा यार ये ऐसे होते हैं, ये तो बड़े डरावने हैं, तो खतरनाक लोग इतना, मतलब दे वर रोमिंग फ्री. दैट्स माय पॉइंट. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आज रोम के दिखाए, आज ऐसा चल के दिखाए, है ना. तो उस टाइम से मैं आ रहा हूं. अब कोई टेररिस्ट बन गया, ऐसा कहना है मेरा, वो बन गया टेररिस्ट, वो किसी से भी इन्फ्लुएंस हो गया, पेरेंट्स से तो नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर. पेरेंट्स को पता है कि भाई इसका जो अंजाम है वो बहुत बुरा होता है, फाइनल अंजाम इसका डेथ है, बहुत ही बुरी मौत है. कोई पेरेंट चाहेगा कोई?
नहीं चाहेगा यार, मतलब मुझे जितना पता है, मतलब जितने भी पेरेंट्स से मैं मिला हूं जिनके बच्चे टेररिस्ट थे, उनकी जिंदगियां खराब। वो सुबह से शाम उनके आंसू कभी रुके नहीं कि भाई पता है उनको ही विल डाई सम पॉइंट ऑफ टाइम। और फिर समाज जो उनको दूसरी नजर से देखता है, नोबडी वांट्स। अब फॉर एग्जांपल कोई टेररिस्ट है, आपने उसका घर तोड़ा, पेरेंट्स ने तो कोई गलती नहीं की यार, दैट्स फॉर श्योर। तो अब द प्रॉब्लम विद अस इज कि कलेक्टिव कॉन्शियंस को सेटिस्फाई तो करना है, बट हमारा मोरल एटीट्यूड टेररिज्म के खिलाफ है, दैट इज राइट। तो वी विल नॉट बी लाइक हैविंग एनी प्रॉब्लम इफ समबडीज हाउस इज डैमेज्ड इन द प्रोसेस। यू गेट माय पॉइंट? सो दीज आर द इश्यूज। आई हैव बीन इनटू द टाइम्स जहां पे लाइक इट वाज अंधेरा, हर कोई मतलब कोई भी चल रहा है, यू कैन नॉट ट्रस्ट पीपल। आई हैव माई फादर हैड टोल्ड मी अ स्टोरी ना, कि तुम कहीं भी जाओ शाम को दिन को, यू डोंट गिव अ लिफ्ट टू एनीबडी इन कश्मीर, एंड आई डोंट गिव। मैं देख रहा हूं बुजुर्ग आदमी है, मैं नहीं बिठा सकता, आई डोंट ट्रस्ट। देयर हैज बीन इंसिडेंट्स जहां पे नो माय फादर्स प्रिंसिपल, ही वाज लाइक माय फादर इज अ लेक्चरर, ही वाज इन स्कूल। बोले यार एक दिन ना दो आदमी आए स्कूल में, बहुत पहले की बात है। बोले स्कूल में दो आदमी आए, बोल रहे हैं अच्छा बेटा जरा रजिस्टर दिखाओ हम अपनी, हमने किसी लड़की का एडमिशन नंबर ढूंढना है जो 3 साल पहले यहाँ पढ़ रही थी। बोला ठीक है, वो क्लर्क वहां देख रहा है, वो बेचारा फाइल पे फाइल ढूंढ रहा है। बोला यार नहीं है इधर कोई। बोला आप देख लो इसमें होगा। ओब्वियसली दो बंदे आए, ऊपर से वो फेयर एंड पहन के, दे कुडंट आइडेंटिफाई कि ये कौन से लोग हैं। ये 90s की बात है। बोले कि ठीक है फाइन। बोला मैं बाहर निकला, मैं ऐसा धूप सेक रहा हूं, मैंने एक बंदे को वॉशरूम जाते हुए इनमें से देखा। ठीक है, उसके अंदर वेपन था, तो ही समहाउ मैनेज टू गेट दैट वेपन रेडी। ठीक है, और वो वापस आया, बोला मैं देख रहा हूं। बोला ठीक। बोला इनने प्रिंसिपल साहब को बोला प्रिंसिपल साहब जरा आपसे बात करनी है, थोड़ा बाहर तक आ जाएंगे। बोला वो निकला। वो मुझे तो शक था कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं इनके पीछे पीछे चल रहा हूं, पीछे पीछे चल रहे हैं। बोले जैसे ही वो आगे निकला, एक बंदा थोड़ा आगे निकला, द गाय हु गॉट रेडी, वो आगे चला, एक बंदा इनसे बात कर रहा है। वो थोड़ा सा मे बी 10 मीटर या 20 मीटर आगे गया होगा, तो वो मुड़ा एंड ही फायर्ड अपॉन देम। ही, उसको लगा था कि दूसरा बंदा तब तक साइड कर देगा, तो आई विल फायर अपॉन द गाय उस प्रिंसिपल पे। बोला उसके चक्कर में उसने दोनों पे फायर मारा, और दोनों गिर पड़े। वो बोला मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं। बोले वो बंदा गायब, वो भागा। एंड दैट इंसिडेंट नो इम्पैक्टेड हिम सो मच कि वो फिर 2 महीने डिप्रेशन में था मेरे फादर। मुझे नहीं पता वो बोल रहे हैं ऐसा। तो बोला यार मैं क्या करूं, मैं तो नौकरी नहीं करूं अब, ये तो किसी को भी मार, प्रिंसिपल को मारा। उस पर इल्जाम ये था कि भाई तुम ज्यादा बात करते हो, यू आर ए पब्लिक पर्सन, यू कैन इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। ये इल्जाम था बेचारा ना। इमेजिन कितना अंधेरा था, लॉलेसनेस थी। तो बोला फिर समहाउ आई मैनेज टू गेट माई ट्रांसफर आउट दियर। तो मैं थोड़ा सा सुकून से अब जा रहा हूँ स्कूल, बट थोड़ा थोड़ा जा रहा हूँ। बोला अब मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। एंड द नेक्स्ट पोस्टिंग ही गॉट, बोला एक दिन तो वहां पे एक एक और उनके दोस्त थे, वो स्कूटर था उनके पास। बोला वो चल रहे हैं, एक बंदे ने बोला यार आप जल्दी जल्दी में मुझे इधर तक छोड़ दे। बोला बैठा दिया, भाई चल रहा है। बोला आगे नाका। बोला उसने उसको कुछ कमर में लगा दिया, बोला अगर रुका तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। ठीक है, वो रुके ना। अब पुलिस एंड आर्मी डोंट आस्क ट्वाइस इन कश्मीर, दे आस्क यू वंस। रुके तो रुके, नहीं तो गए। बोला वो रुका नहीं, उन्होंने दे फायर्ड अपॉन देम एंड दे बोथ गॉट किल्ड। ठीक है, लास्ट ईयर आई हैड अ फ्रेंड फ्रॉम हैदराबाद, लास्ट टू लास्ट ईयर 2024 या October, we were going to Baramulla. Baramulla is like Kupwara. We were going. Like I'm from Srinagar to Kupwara, it's somewhere around 80 kilometers. दोस्त की शादी थी, एक रात हम बैठे, अगले दिन हमको वापस आना था, बट वी गॉट लेट। माय फ्रेंड्स फ्रॉम हैदराबाद, तो आई टोल्ड हिम ब्रो लॉक द गेट्स ऑफ द कार, डोर्स लॉक,
कोई सामने आए नहीं रुकना, चलो 12-1 बजे की, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं कुपवारा पहली बार ही गया था लाइफ में. The time we came back, now there are a lot of friends in police and all. So I called some people. They said, "Okay, come." Now the only point of concern was कि lock the gates, don't open. ठीक है, बस एक चीज दिखाना, कोई मिलिट्री या पुलिस वाला हाथ दिखाए तो रुकना, उसके अलावा कोई हाथ दिखाए तो नहीं रुकना. Now this is the psyche. You don't trust. I don't trust anybody over there. Now it's about drugs. अब तो टेररिज्म ऑलमोस्ट खत्म पे है, इट्स ऑलमोस्ट जीरो. नाउ इट्स ड्रग्स. यू डोंट नो कि वो आप बैग में क्या कैरी कर रहा है, बी इट अ फीमेल, मेल, ओल्ड मैन, यू डोंट ट्रस्ट. तो आई नेवर गिव अ लिफ्ट. तो एक साइकी बनती है समाज की. कहने का मतलब आपको यही है कि जब भी हम मोरल एटीट्यूड कैरी करते हैं, दे आर फॉर गुड, बट उनका कभी कभार एंड रिजल्ट बहुत खतरनाक होता है. ठीक है. Here, then there is social attitude. We have got 5 minutes to discuss. A person's outlook towards social entities, society, culture, organizations, institutions, it shifts over time with culture, generation, and media, and is shaped by personal experience. ठीक है. सोशल एटीट्यूड, हमारा समाज किस तरीके से, किस नजरिए से किसी चीज को देख रहा है. ठीक है. तो रूलिंग पार्टी इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड. आज से कुछ टाइम पहले एक सोशल ओपिनियन था, सोशल एटीट्यूड था कि भाई दे आर डूइंग गुड. मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर फाइंडिंग देम गुड, है ना. तो दिस इज एक जनरल पब्लिक बिलीफ है जो उनके एक्शंस को डायरेक्ट करता है कि फला बंदा अच्छा है, डू इट. ठीक है. दैट्स कॉल्ड एज सोशल एटीट्यूड. नाउ आई विल गिव एन एग्जांपल. एक जमाने में सती प्रथा was socially accepted. Social attitude towards that sati pratha was good. अच्छी चीज है, कर लो. ठीक है. उसमें किसी बंदे की जान जा रही है, एक फीमेल इज बीइंग burned alive. गेटिंग माय पॉइंट. तो एक जमाने में समाज उसको सही समझता था, और उस समझने के चक्कर में वो एक्शन हो रहा था, है ना. आज कोई उसको सही मानता है? नहीं मानता है ना सही. क्यों? एटीट्यूड चेंज हो गया, सोशल एटीट्यूड चेंज हो गया टुवर्ड्स दैट कस्टम. नाउ इट्स बेन्ड, इट्स इलीगल, व्हाटएवर. राइट. तो एक आउटलुक होता है टुवर्ड्स सोशल एंटिटीज, इसमें समाज, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन, व्हाटएवर. ठीक है. इट शिफ्ट्स ओवर टाइम. दैट्स व्हाई आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ सती. पहले के जमाने में बिफोर 1829 और आज. ठीक है. इसमें एक और एग्जांपल मैं दे दूंगा. सेक्शन 377. ठीक है. हमारा समाज इसको पहले गलत समझता था. अब कुछ लोग हैं जो इसको बोल रहे हैं कि नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात है. लेट्स नॉट डिबेट माई सेल्फ इन टू दैट ना. मेरे को क्यों जबरदस्ती इस पे बहस करनी. अपना अपना मामला है, सब देख लो. दिस इज द जनरल पब्लिक बिलीफ नाउ. बट और पहले इट्स कंप्लीटली अननेचुरल है, ये है, पूरे समाज को खराब कर देगा. Over a period of time, you will see it is normalizing in the society. It will normalize, maybe 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद, जब हमारी मोरलिटी चेंज होती जाएगी, हमारे बिलीफ्स चेंज होते जाएंगे, तो ऐसे इश्यूज को भी हम नॉर्मलाइज करेंगे. तब कोई नहीं कहेगा कि ये गलत है. ठीक है. तो सोशल एटीट्यूड्स आर ऑलवेज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कंप्यूटर इंडिया में बहुत नुकसान करेगा, ये 90s में था कि कंप्यूटर मत लाओ, इससे जॉब्स खराब हो जाएंगी. आजकल के टाइम पे हर कोई कंप्यूटर सीखने की ख्वाहिश रखता है. अब तो खैर काफी आगे निकल गए ना. नाउ इनके कुछ सिग्निफिकेंस फॉर ए सिविल सर्वेंट क्या होता है. अंडरस्टैंडिंग वल्नरेबिलिटी, एम्पैथी फॉर पॉवर्टी स्ट्रिकन, डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. अब सोशल एटीट्यूड की वजह से आप समाज को समझ सकते हैं.
एज ए सिविल सर्वेंट आप यहां से उठ के झारखंड चले गए, यू आर फ्रॉम हिमाचल, मे बी हरियाणा, पंजाब, आपको तमिलनाडु कार्डर मिला, आंध्र प्रदेश कार्डर मिला, नागालैंड कार्डर मिला, अगमुट या मे बी कोई दूसरा मणिपुर कार्डर मिला। तो अगर आप उस इलाके में सोशल एटीट्यूड नहीं समझोगे, यू वोंट बी एबल टू वर्क। वहां का कल्चरल नॉर्म क्या है, वहां के लोग किस चीज को सही और किस चीज को गलत समझ रहे हैं, है ना। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए सिविल सर्वेंट टू अंडरस्टैंड कि सोशल एटीट्यूड क्या है, कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन क्या है, फोकलोर कैसा है, ये लोग किस चीज पे बिलीव रखते हैं, है ना। आप मणिपुर चले जाओ, नागालैंड चले जाओ, और वहां आप ये बोलो कि भाई वेजिटेरियन खाना सब खाएंगे आज के बाद, एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आपने डिस्ट्रिक्ट में ऑर्डर निकाला, देयर वाज एन ऑर्डर, आई विल टेल यू एन एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल। इन कश्मीर हमारे डिस्ट्रिक्ट में देयर वाज अ डीएम, विंटर है भाई, चिलिंग ठंड होती है, आपकी हड्डियों तक में ठंड चली जाती है, इतनी ठंड है, -5 -10 इन द एक्सट्रीम विंटर। एक बंदे ने ऑर्डर निकाला कि हीटिंग यूज जो एलिमेंट्स हम यूज करते हैं, ब्लवर्स यूज नहीं किए जाएंगे। नो इमेजिन, इमेजिन द गाय, एक्सट्रीम ठंड है, वो ऑर्डर निकाल रहा है कि भाई ऐसे एलिमेंट्स को यूज नहीं करोगे आप, अप्लायंसेस को यूज नहीं करोगे, हीटिंग अप्लायंसेस को। सारे लोग उस पर बोल रहे हैं भाई क्या आदमी है, किसको उठा के लाए आप। ना 2 दिन बाद उसको अपना ही ऑर्डर वापस लेना पड़ा कि भाई गलती हो गई, मेरा मकसद ये कहने का नहीं था। जैसे हमारे सीजीए साहब की एक छोटी सी बात ने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया, है ना। उसको लग रहा था कि भाई आई विल, बाद में उसने क्लैरिफिकेशन दी कि मेरा मकसद ये नहीं था। इमेजिन सीजेआई विच हमको लगता है कि बड़े लर्नड लोग होते हैं ना, जस्टिस लोग, जज लोग काफी सारे पढ़े लिखे होते हैं, एक एक बात बहुत सोच समझ के करते हैं। कोर्ट रूम में उन्होंने ये बात बोली, और वो अंग्रेजी भी ऐसी थी ना कि वो ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस तो नहीं होगा ये। उनकी अंग्रेजी देखी आपने जब उन्होंने ये बात कही, उसमें इतनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है ना। नाउ अंडरस्टैंड द फैक्ट, एक बात है, अब रोक के दिखाओ, नहीं रुक रही है ना आग, अब आग फैल गई ना। हैव यू सीन प्रोटेस्ट इन पटना, दे बिकम वायलेंट। चंडीगढ़ में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पता आपको, एनीबडी जिसको नहीं पता, पता है सबको। सेक्टर 17, चंडीगढ़, हैदराबाद, पटना, नागपुर महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली तो हॉट बेड है ही। तो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समाज को, सीजे साहब को नया सोशल एटीट्यूड नहीं पता ना, नए लोगों का, इनका एटीट्यूड क्या है, निकल गई मुंह से बात। कॉम्बैटिंग बायस, अवॉइडिंग स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिस। टाइम हो गया, मैम विल बी वेटिंग।